Done? Started? Yes. So बैट का टॉपिक किस चीज को आ रहे हैं? दीपिका इज लुकिंग वेरी सैड बाय मॉर्निंग में बुला लिया इसलिए. अच्छा. So when you look at written ability test, it is same as your GD. If you look at in terms of the way that you approach it. So back. अजीक आगे अजीक चेयर. So when you now don't make noise. So GD पे और बैट का क्या चीज कॉमन होती है? Never read about bat. बहुत देर पहले we shared it in the group about one small block called cat writer. कि तुमने वो देखा था जो लिखा तो ये तुमने देखा है. बाकी सब ने देखा? आडवी जी देखा था वो? So what was the premise of that particular GD and bat? कैसे लिंक हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? हाँ. So basically when you look at WAT, it is that may be called as the written aspect or written form of your GD. Reason it asks you for a particular question and it gives you time. एक तो जब आपको टाइम दिया जाता है तो टाइम पे क्यों नहीं आते बताइए. नाउ यू आर डिस्टर्बिंग द एंटायर क्लास. व्हाट वाज द टाइम गिवन टू अराइव? हां 10. डिड यू रीड द नोटिस इन द ग्रुप? 9. हां तो ये कितना टाइम हो रहा है अभी? खैर आई डोंट नो. So when you look at the GD aspect of it, ये आपकी पूरी oral होती है. So you present the topic, you have completed in front of you, you got 5-6 people debating upon it. Written form में you just have to write your own thoughts. That's the only difference which I find is there in GD and the WAT. Otherwise, when you look at that, इसमें 3 components होंगे which we'll also see in the presentation, which will make or break your essay. तो VAT एक तरह से कैसे होते हैं? जो एक 20 को आपसे लिखवाते हैं, क्यों लिखवाएगा शिवम जी? Why would a B school make you write an essay? So to check your perspectives, to check your way of thinking, critical thinking. Right. So one thing which came out is it will test your critical analysis skills, just as your GD does. Critical analysis of the topic. वो आपका इंग्लिश ऐसे चेक नहीं कर रहा है. इंग्लिश उसे चेक कर लिया अपने कैट के अंदर, उसने इंग्लिश चेक कर लिया IFT के अंदर या जैट के अंदर या किसी के भी अंदर. But yes, you have to follow the standards of English. You cannot write grammatically wrong sentences. हाँ, 2-3 spelling mistake हो सकते हैं. मुझे अभी भी receipt के spelling थोड़ी confusing होती है. That whether it is EI or I, that is not considered a very major mistake. But हाँ, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है that while climbing the staircase the bottle fell down, तो ये एक mistake है, क्योंकि उसका मतलब ये निकल रहा है कि जो staircase चढ़ रही थी वो कौन थी? Bottle. So that kind of mistake is not acceptable because that will change the intended meaning of the thought or the sentence. Fine. So critical analysis में you might have done that in GD also. कोई भी टॉपिक मिलता है आपको. Let's talk about a topic. हाँ. Or not this one. For example, we'll take a simple topic. So I'll give you 2 minutes to understand what this topic is asking you. Categorize it कि किस category का topic है. There are 3 categories which we'll discuss later on, but I'll name them. One is what we call as a very yes or no category. One is something which is called wishy-washy, and one is what we call as a very open-ended question. Abstract can be anything. For example, if I say pollution, अब उसमें उसे pollution लिख दिया. Pollution में आपने क्या लिखना है? That is your own thought process. That is why it is called open. So now take 2 minutes. This is your topic and try to tell me what exactly
is the author or the B school asking you whether it is asking that to achieve success one must reject conventional thinking. सोचिए और फिर अपने पॉइंट्स गैदर करने की कोशिश करिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपको दिख रही है? Don't write an essay, only the points which you believe. अल्लाह जी फोन सेट कर रख दीजिए. One minute left. Done? Who can explain what the question is asking me? What is the question basically? कौन बताएगा? दीपिका? ये मुझसे पूछ क्या रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये yes or no question है? ये wishy-washy? Wishy-washy means that you can to a degree agree or disagree with someone. वो बहुत ज्यादा उसमें what we call as black and white नहीं होगा. हाँ ये ही होना चाहिए, no ये नहीं हो सकता. It could be yes I agree to some extent that government of India is good. To some extent. So I cannot say that Modi is very bad. वो आपका experiment के अंदर आ जाए. So what is your analysis of this topic? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? Open है. ये open है, okay? You agree ये open है? I think it's wishy-washy. Why? So because it's not necessary that we have to totally reject the conventional thinking. We can take up the best approaches from both the traditional and the modern thinking. So why do you think it is not be open? इसमें ऐसा क्या कीवर्ड है जिसके कारण मुझे पता चल जाएगा कि ओपन नहीं है? मस्ट, शुड, मस्ट. ये आपके वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं which demand or which show that it's an argument. वही करते हैं ना अपन. Government of Modi should be or Modi government should resign. Should resign का मतलब मेरा argumentative point है. If I say government Modi government is okay, I don't know. That is not very strong point. तो ये must reject है. अब इसका मतलब क्या निकलता है? With राघव जी, what does it mean? सर बेसिकली स्टेटमेंट में बता रहा है कि जो हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग है उसको रिजेक्ट मतलब ओवरथिंक नहीं करना चाहिए. उसमें वो ज्यादा दिक्कत जाना चाहिए. वो ओवरथिंकिंग का लिखा है. कन्वेंशनल थिंकिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए. टू सम एक्सटेंट इट्स ओके. To some extent it's okay. आप बताओ, what did you think about it? What is it asking me? So like to achieve success, it's not necessary that we should only take up the conventional approach or the modern approach. I think we can mix and match the best of both the approaches and we can move towards success. So the question is basically asking me if you want to achieve success, you cannot go and depend upon conventional thinking. अब one must reject. तो इसमें success का मतलब क्या है? First जी, what do you mean by success? सर कि कुछ मतलब अचीव करना सर का आगे कोई जैसे कि टारगेट मतलब like you want to become Elon Musk. तो Elon Musk ने जो चीज करी that was all conventional thinking. उसने टेस्ला मोटर कार कंपनी बना दी, उसने बोरिंग मशीन बना दी, बोरिंग कंपनी बना दी, उसने वो क्या है उसका वो जो SpaceX बना दिया, all that stuff, and then he has got that Hyperloop
So that is unconventional thing. Nobody thinks about digging a post inside the CD and then making people run into those capsules or modules. तो क्या उसको success कहेंगे? So I think everybody has his own definition of success. Yes, so you need to understand कि जो critical analysis है success का मतलब क्या है? My taking this class successfully means that you all should be able to understand what is what. तो वो भी मेरे लिए success है. Maybe you getting into IIM Ahmedabad or whatever call you have received, that is success for you. अब मैं अगर successful बनना चाहता हूँ अपनी क्लास में, like I really want to understand what is what, तो मैं टाइम कन्वेंशनल तरीका इख्तियार कर रहा हूँ. I'm doing it through online method. तो क्या मुझे ऑनलाइन मेथड ही यूज करना पड़ेगा या मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूं? सो दैट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस दैट यू नीड टू डू फॉर एवरी टॉपिक दैट इज देयर. अब इसके लिए जीडी में आपने कुछ एक स्टेप्स लिखे थे. व्हाट वर दोस 4 or 5 पॉइंट्स अपॉन व्हिच यू कैन एनालाइज दिस टॉपिक? So religion. हां, तो उसका ओरिजिन. So why this topic, why has this topic come up right now? Because right now if you look at the world, there are a lot of things which are happening. So there is a way you can connect it. अब ये इकोनॉमिक टॉपिक है या ये आपका सोशल टॉपिक है या ये आपका इसोटेरिक टॉपिक है, वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू आर राइटिंग इट फॉर एमबीए, मे बी दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप के साथ रिलेटेड होते हैं. स्टार्टअप कल्चर इन पास्ट डेकेड हैज कम अप लाइक एनीथिंग. कौन कौन से स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो मेजर है? ओयो इज अ स्टार्टअप, देन यूबर ऑन द वर्ल्ड लेवल इज अ स्टार्टअप, बायजूस इज अ स्टार्टअप, Zomato, Ola is a. So if they want to achieve success, is it necessary that you go beyond the conventional thinking? अब अगर आप यस बोलते हो तो मे बी अच्छा सक्सेस के लिए तुम्हें अनकन्वेंशनल थिंकिंग चाहिए, तो एमबी क्यों करना चाहते हो? एमबी तो कन्वेंशनल तरीका है, तो तुम्हें स्टार्टअप करना है ना, तो ओयो वाला ने कौन सा एमबी करा होगा? So you have to think at that level. So find out what is the origin of this topic, why and how we should approach it. उसके बाद क्या टॉपिक आता है? उसके बाद क्या करना चाहिए? I don't know. This entire thing may be different from what sir told you. तो उसके बाद उसके सोशियो-इकोनॉमिक एस्पेक्ट का पिकअप कर सकते हो. Can I categorize? Can I channelize my thoughts into socio-economic aspect of it? Raising good children. Today, if you look at crime rate, today if you look at aggression in the entire society is increasing. क्यों increase हो रहा है? आज अगर आप देखो तो टीचर का जो रोल है, that has become unconventional. हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, you were not there, तो आज भी अगर मैं बीसे में जाता हूँ, बीसे से कौन कौन है यहाँ पे? तो आज भी अगर मैं बीसम शास्त्र में जाता हूँ, वहां पे कंचन मैम आ जाते हैं, तो मेरी अपने आप ही हाथ पीछे और ऐसे हो जाती है. Maybe the generation which comes from, let's say 10 years from today, will say, "Hi sir, क्या हाल है आपका?" और "Good, क्या हाल है आपका?" Maybe. So why is socio-economic role and how the socio-economic roles are changing? So to raise a family successfully, do you need to follow conventional way of Indian, maybe family system, और आप globalization लेके आ सकते हो? Maybe. और क्या हो सकता है इसमें? What can be the other aspect? I can explore the topic analysis के time. लिखा था ना मैंने? Also approaches in a political aspect. You can talk about the political aspect of it. Modi government came into power by using unconventional methods of approaching the masses. कैसे क्या तो उन्होंने वोटिंग को सीख कैनवासिंग किस पे की थी? सोशल मीडिया पे. आज से पहले कभी इंडिया के अंदर सोशल मीडिया का यूज हुआ था फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग? नो, ही डिड दैट. मे बी अचीव सक्सेस बाय यूजिंग अनकन्वेंशनल मेथड, वो आप पिकअप कर सकते हो. और then you have technical aspect of it. So you can go into the technical definitions of all these words. Conventional thinking का मतलब क्या है? For example, if I want to launch a rocket, आज तक अगर मैं लॉन्च करना चाहता हूँ किसी रॉकेट को सक्सेसफुली, तो क्या मैं एक अलग तरीका यूज करूंगा या जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका उसको यूज करूँ? So in that case, conventional thinking will be there. I cannot go beyond certain categories, certain things in certain aspects. कोल्ड होता है, ठंडे पानी से नहा ले, अनकन्वेंशनल तरीका है. नो, यू कैन नॉट डू दैट. तो वो. और देन यू हैव इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. मे बी यू कैन गो इनटू लीगल एस्पेक्ट. दिस कैन बी नॉट इकोलॉजिकल, इट कैन बी एनवायरमेंटल. पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करेंगे? चाइना ने करा था. इट क्रिएटेड अ बिग वैक्यूम क्लीनर इन द एंटायर वर्ल्ड. वो लगा दिया तो उन्होंने पता नहीं कहां पे बीच में. तो वो वुड हैव एयर प्यूरिफायर था सर. हां, एयर प्यूरिफायर. पता नहीं किसने वैक्यूम क्लीनर वहां एयर प्यूरिफायर. सो वुड हैव थॉट दैट चाइनीज विल टेक अ स्मॉल थिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू बिग बिल्डिंग साइज थिंग एंड रिड्यूस दिस. वर्टिकल गार्डन्स आज से 15 साल पहले वर्टिकल गार्डन शायद नहीं थे. आज वर्टिकल गार्डन स्वीडन के अंदर या पता नहीं नॉट दीस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में
जो रोड का डिवाइडर होता है उसमें उन्होंने विंड टर्बाइंस लगा रखे हैं। Yes. The cars will pass, they will turn and automatically generate electricity. जैसा भी बुड्ढा नाला है या फिर ये सिद्धवा कैनाल है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, they have in some cities they have created small vortex enabled generation of electrical generator, मतलब पानी को घुमा देंगे, चला देंगे, maybe pollution reduce करने के लिए अनकन्वेंशनल तरीका। और क्या रहेगा इसके अंदर? सोशल-इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल, लीगल। So what will be the legal aspect? गुड क्वेश्चन, बताओ। अब इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। भगवान को याद करने का अनकन्वेंशनल तरीका वर्चुअल आरती। पंडित कहते हैं ना, मैं फोन कॉल पे तुम्हें पूजा करवाऊंगा एंड देन अगेन तुम्हारे आप पॉप विल बी, जिस तक तुम्हारे पापा धुल जाएंगे। सर कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल ये भी तो आ सकता है, भगवान को मानना और ऑब्वियसली कि मानना ही ना, वो भी तो हमारा इसी में आएगा। हाँ, अब कन्वेंशनल लोग कितना मैं मानते डीप हैं। जा सकता हूँ। सो पॉइंट बीइंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू पिक अप एवरी टॉपिक एंड अटैच इट विद दैट पर्टिकुलर। यस हर एक में नहीं कर सकते ना। अब वहां पे टॉपिक आएगा, शुड गवर्नमेंट्स रिजेक्ट और शुड वी स्टडी मेजर सिटीज टू अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ ए कंट्री। वहां पे उसका लीगल एस्पेक्ट क्या करेगा, नहीं कर सकता। तो दीज आर जस्ट अ वेज टू एक्सपैंड द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, बट नॉट नेसेसरी एवरी पार्ट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। ये इसका लर्निंग फाइन। अब इसके लिए इफ आई पिक अप W80 टाइमलाइन, कितना टाइम मिलता है आपको? 30 मिनट्स। 20 मिनट को 20 मिनट लगा भी चलते हैं। और टाइप करना होता है, लिखना होता है? टाइप करना होता है। कितने वर्ड्स टाइप करने होते हैं? 300। और कितनों, how many of you are basically touch typists? Touch typist क्या होता है? सर बिना देख के लिख लो। कितने लोग कर लेते हैं? बाकी ऐसे क्या करेंगे इसको इंप्रूव करने के लिए? I don't know. That's the time bandwidth you have or not. But there's a very good website. One of the good websites, not necessarily the website. That is called typing.com. Go there, start typing. It will improve it. मेरी मजबूरी थी, मुझे कई बार अंग्रेजी में टाइप करना पड़ता, तो I became a touch typist because of my necessity, mother of invention. But you have time, go to typing.com, start typing. अब इसका क्या मतलब है? If I want to write a 300-word essay in 20 minutes, so should I be writing at 15 words per minute to get into 300 words? नहीं ना। कभी भी आप कोई भी चीज बनाते हो, मैगी भी बनाते हो, तो ये नहीं बनाते चाहे मैगी डाल दे, पानी डाल दे, नमक डाल दे, वो वाटर में डाल दे। कितने लोगों को बनानी थी? एक बंदे के लिए। You don't do it. So in 15 to 20 minutes, first 2 to 3 minutes will be this critical analysis or what we call as brainstorming. For example, अगर मैं इसको लिख लो या फोटो ले लो, whatever it may be, just it's your wish. Then we can tell you what exactly is brainstorming. How would you do that with this topic? अगर कर लिया तो बता दो। Done with this? So given 2 to 3 minutes of understanding, analyzing, brainstorming this topic, इसके लिए अगर एक विशी-वॉशी है, ओपन में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट उसमें भी आएंगे। ओपन में क्या करोगे? You draw a T and you write 2 aspects of it. Success must be conventional. You cannot go beyond that. And success can be unconventional. यही तो outcomes होंगे इसके, right? Now your personal biases should not come into this. You are writing against Modi government. You are writing in favor of Modi government. Should not come from what you personally believe. मुझे 300 words में justify करना है कि मैं कितना अच्छा मैनेजर हूँ, मैं कितना डीप जा सकता हूँ। So write down points in both the direction or both the sides. और कहा जाता है कि जो दिमाग में आपके ऐसे पॉइंट्स आते हैं, वो सबके दिमाग में आएंगे। For example, if I say how to fight pollution, सोचो 30 सेकंड के लिए how to fight pollution. Let's see, 30 सेकंड का टाइम है। Think of solutions how to fight pollution. सोचिए। फार्मर जो क्या कहते हैं बर्न वगैरह करते हैं उसके वहां पर स्टबल बडी शुड बी शॉर्ट। कितने लोगों ने सोचा था? रेज योर हैंड। तो एक पॉइंट सबका कॉमन होते हैं। और कोई पॉइंट आपका? So use of the plastic dumped in the oceans and like trying to convert Reduce the it. use of the plastic dumped in the ocean. No, ये sir. कितने लोगों ने सोचा था? Like sir, my idea was अच्छा, to use the recycling of that one. to use it into a particular उसको Recycle plastic from anywhere. ये कितने लोगों ने सोचा था? recycling. ये भी कॉमन हो गया। और भी
कारपूल है कारपूल कारपूल, ओके कारपूलिंग, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये कितने लोगों ने सोचा था? ये देखो, यू नो आईफोन 12 प्रो मैक्स 256 GB एक्सेल कितने का बिकता है? 1,12,000। उसमें ऐसे 1,12,000 का बिकता है। हमारे कल स्टूडेंट नहीं कहते, देखा तो नॉर्मल है, उससे भी कॉल ही होती है। इफ यू कॉल मी यू विल नॉट साउंड लाइक ब्रैड पिट, इफ आई कॉल यू डू नॉट साउंड लाइक यू नो बैटमैन। सो व्हाट मेक्स आईफोन गिव यू अ फोन वर्थ 1.2 lakhs? सर चाहे उसकी कॉस्टिंग कम होती है, उसके पीछे R&D जो लगती है वो है ना, R&D उसमें फीचर होते हैं। लेटेस्ट And I स्टेटस, Brand equity हाँ होता है। बेसिकली इफ आई लुक एट स्टेटस, मैं तो मेरे पास 3-4 फोन है, तो वो स्टेटस के लिए नहीं है। देयर वाज अ मजबूरी व्हिच आई अगेन वेंट एंड बॉट आईफोन, बट आई रियलाइज कि एंड्रॉइड के बाद आईफोन में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये था कि एंड्रॉइड का जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि वो कहीं ना कहीं जाके स्लो हो जाता है। yes. क्यों स्लो हो जाता है? बिकॉज वो थर्ड पार्टी के साथ, वो टेक्निकल डेफिनेशन आती है, आईफोन ही स्लो होता है। सो पैकेजिंग ऑफ दैट आईफोन मेक्स इट डिमांड और कमांड ए हाई प्राइस। अब बेसिकली इसने पूछा यार Q7 इतनी महंगी गाड़ी क्यों है 1.5 करोड़ की, चली तो उसी सड़क पे है, यू नो द आउटपुट। तो मेरी मारुति सुजुकी जरूर उसी सड़क पे चलती, बेचारी 4 लाख की गाड़ी थी, वो 40 लाख की गाड़ी है, ये 40 से भी ज्यादा की है। देन आई टोल्ड हिम कि बेटा जब मेरी मारुति सुजुकी एस्टिलो चलती है ना, ऐसे से हिल जाती है सड़कों पे, जब Q7 चलेगी ना स्मूथ जाएगी। So when you look at this, it has to be packaged in a way that your essay should stand out. अगर सब बोलेंगे that yes we should reduce the pollution by getting into public transportation, तो तुम different idea कर लेते। That's the packaging. So जो पहले के 2-3 पॉइंट्स आते हैं, do not try to write on that. Think. अब suppose इधर आपके 4 पॉइंट्स हैं, इधर आपके 3 पॉइंट्स हैं, you are biased towards that, तो किस पे लिखोगे? चारों। So always have a unbiased approach towards it. अब इसके लिए ऐसे लिखना आना चाहिए, इसके लिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, राइट? सो 1, do not try to write on the first or 2 points which come immediately in your mind, because हो सकते दिमाग में आएगा। Second, try to pick up that side which has got more points than the side which may be your bias side. ये हो गया, ये 2-3 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद you have 300 words per minute to be written, तो इसको 15 मिनट में लिखो। So you need to have a typing speed of around 25 words per minute. 30 मिनट्स मिलते हैं सर। 20 लगा के चलते हैं, चलो 20 मिनट लगा के चलते हैं, लेट्स नॉट फाइट। वो फाइटिंग हो गई हमारी जीडी में, अभी नहीं करनी। 30 मिनट में प्रोपोर्शनलिटी चेंज करो। आई एम टेकिंग 20 मिनट जस्ट फॉर द सेक कि आप 20 मिनट में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कैटबेस वाला होता है 40 मिनट में पता नहीं क्या होगा। सो 15 मिनट इफ यू आर राइटिंग, then you have to achieve a typing speed of 25, then only it will come down to what we call as something called 20 words per minute, क्योंकि टाइप करोगे, रिवर्स भी करोगे, सब कुछ करोगे, वो उससे कर सकते। लास्ट के कितने मिनट बच गए? 2 मिनट्स। इसमें क्या करना है? प्रूफ रीड करना है, करना पड़ेगा। मेरे साथ होता है कई बार, मैं कई बार ऐसे लिखता हूँ, पहली बार ऐसे लिखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या जीनियस है, शेक्सपियर तेरे को आगे सलाम करेगा। I go out, come back, and then I say, ये क्या लिखा तूने? So when you go back and you read the essay, there may be some points which you might want to change, or there may be some grammatic mistakes. So एक suggestion और, जो आप सोच रहे हो, इसी ऑर्डर को फॉलो करो for writing your essay. Do not try to change this order. तो जिस ऑर्डर में सोच रहे हो, कन्वेंशनल इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, so this if you do very carefully, very powerfully, ये 15 मिनट आपके अच्छे हो जाए, यही होगा। तो क्रिटिकल आंसर इसका होगा। कोई क्वेश्चन इसमें? यू शुड स्टार्ट विद द कोड, वो अभी इस पे आएंगे, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, वो ब्यूटिफिकेशन पे भी आएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। In wishy-washy topics like these, we can write on both the aspects. Or Yes, but you need to take a small stance towards one aspect, क्योंकि आप अगर लास्ट में बोल दोगे डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज डूइंग इट, then why did they ask you this question? Wishy-washy में you can to extent disagree or agree, but you have to take a small stance over it. तभी तो तुम सब पूछ रहे ना कि क्यों करना चाहिए। नहीं तो अगर आप देखो, अब वो आपसे क्यों पूछना चाहते हैं एक क्वेश्चन, वो जानना चाहते हैं कि आपके डिसाइसिव नेचर है या नहीं है। अब वहां पे बोले फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस, शुड वी बाय हैमलेस, किसी ने तो बोला होगा ना वो अंबानी जी को कि भैया हैमलेस खरीद लो। अब वो पूछेंगे, वो एनालिसिस करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को बोलते हैं, जो जाओ एनालिसिस करो, शुड वी बाय हैमलेस, सर देख लो पोता आपको होने वाला है, आपके ऊपर है। मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों ही हो सकते हैं, तो क्या करेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा।
हमारे साथ होता है, हमारे मतलब जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ना, मुनीष सर को पूछो सर क्या करें, मैं क्यों बताऊं, तो वहां पे है मतलब, तो व्हाई हैव वी केप्ट यू, सो एज अ मैनेजर यू हैव टू बी डिसाइसिव, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा एस्पेक्ट क्यों लिखना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। एमएस खरीदोगे सो मे बी 50% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ टॉयज विल कम अंडर योर डोमेन, बट जो स्मॉल जो किराना शॉप या बाबा पापा शॉप्स हैं जहां पे टॉयज बिकते हैं वो तुम कवर अप नहीं कर पाओगे, तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो उसके मद्देनजर ऑल दैट ये करते ना, अच्छा मेरे को निकलना पड़ेगा, 10 बजे क्लास है, आधा घंटा दूर है, चल 15 मिनट में निकल लेता हूं, क्या हो जाएगा, वो एक एस्पेक्ट है, बच्चे लेट हो जाते हैं। जो पहले पूरा निकाल के चलते हैं, हो सकता है कि ढूंढ दो तो पहले निकलूं तो बच्चे टाइम पे पहुंच जाते हैं। और कुछ क्लियर, गुड। Now, second, the more important part of it, the actual writing. कितनों को ऐसे लिखने की आदत है? 1, 2, ब्लॉग, ऐसे कुछ भी, स्पीच। So report लिखना is not an essay, तो मेरा हाँ, रिपोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग। टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका, कौन सा क्या? कॉमर्स है, बट आई अच्छा हाँ, तो रिपोर्ट राइटिंग में यही होता था कि रिपोर्ट एक वालों में सुनिए सारे वर्ड लिखे जाते हैं। So articles usually. लिखते हो, तो जितनों को आदत नहीं है आज से आदत डालो और बैठ लिखने की, इट विल टेक यू वेरी बिग टाइम टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल सस्पेंडेड एक्टिविटी, सस्पेंशन में। अभी मैं बोलूंगा लिखो इसके ऊपर ऐसे, सर आज नहीं कल लिख लेके आएंगे, क्यों दिल नहीं कर रहे, करेंगे ना इसके अंदर, क्योंकि वो दिल नहीं करता उसके अंदर, सो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। कल छवि चल रही है, तो कल आधा घंटा लगा के जो भी मैं 3-4 टॉपिक दूंगा उसमें पॉइंट्स लिख के एक ऐसे के ऊपर ऐसे लिख के लेकर एक टॉपिक के ऊपर, सेंड इट टू ludhiana@imsindia.com, वेल चेक इट एंड रिवर्ट इट। उसमें भी बहुत चीजें होंगी जो हमें लगता होगा कि हाँ हमने अच्छा लिखा है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कुछ और। So now when we get into the actual writing process should be good. It should have coherence. Coherence का मतलब क्या होता है? एक फ्लो में थॉट्स होने कनेक्ट होता है। आरसी सबने करी है, we all are suspect and victims of आरसी, कभी आप तक समझ में नहीं आई, तो उसमें क्या होता है? फ्लो, सर आइडिया समझ में नहीं आ रहा, पढ़ता हो तो नीचे तक आइडिया खत्म हो जाता है। So imagine you cannot communicate with the person you are targeting. मेरे हाव इस हाथ के एक्शन के साथ हो रहे हैं, जीडीपीआई में योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी मूवमेंट, योर बॉडी लैंग्वेज विल असिस्ट यू। राइटिंग में क्या कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द सेंटेंस। हाउ इज इट नेगेटिव? Not interested in what? Inclined. इन टीचिंग दैट Negative. नेगेटिव टोन तो बहुत नॉर्मल टोन है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल में नहीं, बताओ क्या है? हाउ इज इट नेगेटिव? पैसिव, हाउ इज इट पैसिव? Because it's said you that you're not interested in. Who said it's my duty? It is written, it's not written by me, it can be written by anyone. प्रॉब्लम है ना, ये पता ही चला क्या करना है, तो क्या करोगे? So you're talking to a person whom you will never meet, maybe you meet, whom you do not know कि उसका क्या हाव भाव है, कैसा हाव भाव है, क्या नहीं है. So you're going to communicate your thoughts to that. और यहाँ पे आती है आपकी, हाँ जी मैम, नहीं मेरे से बात करें आप देखो. वो रिकॉर्डिंग चल रही है. एक तो मुझे का मैसेज है कि वो 10 to 15 मिनट लेट हो जाएंगे, तो आप 1-2 टॉपिक्स बैठ के शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स से लिखवाने के लिए ना, ठीक है. और जिनके कॉल लेटर नहीं आए मेरे पास, हाँ जी, अच्छा हाँ, क्वालिटी कितनों ने क्वालिटी नहीं भेजे? सिद्धम ने नहीं भेजा. और कोई है जो स्टूडेंट इसे नहीं भेजे, नहीं आए तो प्लीज सेंड कर देना, ठीक है. और वो सबसे आगे है, अगर नहीं भेजे हुए तो प्लीज भेज दो. No idea. अब, so my coherence should be there. I should communicate. How do I achieve coherence? Use good connectors. क्या होते हैं connectors? Conjunctions. Firstly, secondly, thirdly.
अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई डू नॉट अग्री विद द ऑथर दैट कन्वेंशनल विजडम शुड बी यूज्ड फॉर सक्सेस, फर्स्टली आई बिलीव दिस, सेकेंडली आई बिलीव दैट, लास्टली आई बिलीव दिस। जितना काम तुम अपने एसे चेकर का आसान करोगे उतना उसके लिए आसान रहेगा। If he has to force himself to study that topic, if he has to force himself to understand the coherence, he will deduct marks. उनको बहुत सारे एसेस मिलते हैं हर रोज के। हम जब ऐसे चेक करते थे, I was certified by Princeton for GMAT essay checking, तो उसमें हमें इंस्ट्रक्शन शीट मिली थी 2 पेज की ऐसे चेक करने के स्टेप्स, एंड 3 स्टेटमेंट्स वर वेरी वेरी वियर्ड। एक स्टेटमेंट था डू नॉट ईट लंच एंड चेक दी एसे। तो इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि तुम लंच खाओगे तुम्हें उबासी आएगी, you will be feeling maybe soporific and then again you will not evaluate things correctly. Do not fight at home and then check an essay, because तुम्हारी वो फाइटिंग की खुंदक उसमें निकल जाएगी। Do not read an essay twice. 300 words कितने लोग 1 मिनट में पढ़ लेंगे इसमें? यहाँ में how many can read 300 words per minute in 1 minute? 300 वर्ड पढ़ लेंगे ना, तो ऐसे चेकर क्या होगा? कितने मिनट में पढ़ लेगा तुम्हारा ऐसे? मैक्सिमम 2 मिनट्स मैक्सिमम, कुछ भी करके, क्योंकि उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना है, तो मे बी आधे मिनट के अंदर। तो तुमने 1 मिनट के अंदर उस ऐसे चेकर को इंप्रेस करना है, कन्विंस करना है और प्रूव करना है दैट यू आर गुड मैनेजर। वो रीड नहीं करेगा, उसको एक बार में समझ में आ गया नहीं आया तो बाहर में जाओ। सीधी बात है ना, देयर गॉट मोर देन 1 लाख पीपल आउट देयर टू गेट द पोजीशन दैट यू आर पाइलिंग फॉर। उनकी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत है। सेल्स पर्सन में जाते हो तो सेल्स बंदा तुम्हारे पीछे भागते हो, तुम सेल्स पर्सन के पीछे नहीं भागते। बता दे इसके फीचर क्या, वो तुम्हारे पीछे पाइएगा, देखो फीचर। So that's it. It's a sales pitch. So coherence. So use good connectors. What about vocabulary? हर्ष जी, vocabulary कैसी है आपकी? दुखद नफ्स पे हाथ रख रहा हूँ, बट से। ठीक है, intermediate. Should I use very high vocabulary? Should I use very good vocabulary to impress the person in the essay? No, not needed. Because अगर आपने पहले पैराग्राफ में खतरनाक से vocabulary यूज कर ली, my paradigm initiates me into let's say asserting that government of Modi should be reprimanded and absolutely let's say dissolved. उसके बाद I beg to say that this is there, तो वो गलत हो जाएगा। vocabulary तब यूज करो जब तुम अपने वर्ड्स को कम करना चाहते हो, because you have 300 words, you got a shortage of words. In my opinion I believe 5 वर्ड है, I think 2 वर्ड है, 3 वर्ड इधर सेव करोगे, उधर जाके 3 वर्ड कहीं और यूज कर पाओ। So do not try to impress. If you are naturally good at vocabulary, वो अलग बात है। बहुत कम बंदे मैंने देखे जो naturally good होते हैं, मैं खुद भी naturally good हूं। Fine. So vocabulary only to save words. उसके लिए शॉर्टकट होगा। वेरी हैप्पी का शॉर्टकट क्या होता है? Euphoric, delighted. I am very strong. Let's say I strongly rejected. Maybe I let's say rebuke it, something. Condemn it, ऐसा कुछ। तो वहां पे आप vocabulary यूज कर सकते हो। उनका vocabulary से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने देखना कि आप कितना डीप बन जाओ। देन coherence में आप क्या आता है? आइडिया होना चाहिए। देन relevance should be there. Relevance के अंदर you need to have good examples. You should use good examples. hypothetical मत यूज करना। If I think a situation can be like this, तुम्हारे पास सिचुएशन है, गवर्नमेंट के ऊपर है, कहीं पे भी है, you are going to get into a prestigious B school, you should be aware of the things that you are getting into. तो कंटेंट, जैसे जीडी में तुम एग्जांपल देते हो ना, डिक्टेटरशिप के एग्जांपल दे रहे हो, तो डिक्टेटरशिप के एग्जांपल में क्या दोगे? अगर कोई राजा हो, सीधा बोलो नॉर्थ कोरिया, मे बी रशिया टू सम एक्सटेंट, मे बी समथिंग, तो यू हैव टू ब्रिंग इन गुड एग्जांपल्स इन दैट केस, गुड एविडेंस इन दैट केस, स्टैटिस्टिकल फिगर लेके आओ अच्छे वाले। फॉर एग्जांपल अभी फूड बिल के ऊपर मैं कहीं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, फार्मर्स बिल, ये फूड बिल है, यू नो हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे है? 192, I guess. आउट ऑफ 100 how many countries? 192. So if we are one of the biggest producers of wheat and rice, how come we are at the hunger index of 192? pathetic क्यों हमारा? कृषि प्रधान देश हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे है, ये पैराडॉक्स है। That is agriculture implements, agriculture policies are not working at all. So that's a failure of the government. ऐसे फिगर लेके आओ, फिर मजा आएगा। पॉलिशिंग के अंदर अगर बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम बोलना चाहते हैं that we need to use conventional और unconventional production means of electricity, तो सोलर पावर में अगर आप देखो तो सोलर पावर I don't know 3 years ago I read it कि इंडिया में इतनी ज्यादा सोलर इनपुट आता है कि वो कहीं देशों से कहीं न कहीं आगे है, मे बी रिडक्शन ऑफ दैट। आइए आइए आइए, वेलकम। So
So relevance should be there. Coherence, relevance. ये दोनों चीजें स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब स्ट्रक्चर के लिए ये 300 वर्ड्स आई अज्यूम बैलेंस करिए फॉर एवरी 300 वर्ड एसे विच इज ऋषि वॉशी और यस और नो, तो 1 इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कोड दो ना दो वो आपके ऊपर है। यू कैन रिमेंबर कोड्स, इट इज वेरी गुड। यू कांट रिमेंबर कोड्स, इट्स ओके, नॉट नेसेसरी। आपकी स्टार्टिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग इफेक्टिव है तो आपका ऐसे अच्छे तरह से पढ़ेगा, अगर स्टार्टिंग बोरिंग है तो नहीं पढ़ेगा अच्छे से, सीधी बात ये है। तो इंट्रोडक्शन में how it will be there, we'll see the format. If it is not there in the format, we'll make you write it down. So we'll see. Then point in your favor. But 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे। रुको 2 और 3 point in your favor 300 वर्ड है ना। Point in your favor, then again point in your favor हो सकता है 200, then 5th is rebuttal. Rebuttal का मतलब होता है your the other aspect of it, opposite view, that will give you balanced view. I love Leonardo. हाँ मुझे पता थोड़ी वो टैक्स की चोरी करता है, but that who doesn't do it, वो चीजें। I love Modi, what of there is a demagogue, but still तो रिबटल इंपॉर्टेंट है फॉर अ बैलेंस व्यू। इट्स नॉट एन इंग्लिश एसे, इट्स अ मैन रेड एसे, तो दोनों एस्पेक्ट पढ़ने पड़ते। देन कम्स योर कंक्लूजन। So this will change according to the number of words you have, but the overall structure should remain. Sir, is it necessary कि रिबटल बाद में ही आएगा पेपर के? Second. जैसे ये था वो अचीव सक्सेस कन्वेंशनल थिंकिंग बोला, वैसे जैसे कि वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कन्वेंशनल थिंकिंग को रिजेक्ट करना चाहिए। तो पहले हमें ये पॉइंट देना चाहिए कि जैसे मेडिसिन वगैरह की हमें कन्वेंशनल थिंकिंग सोचनी पड़ती है, रॉकेट लॉन्च, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉइंट इन आवर फेवर की वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इंट्रोडक्शन के बाद हाँ मेरा भी बाद में आया ना, पहले मैंने कन्वेंशनल थिंकिंग बता दी कि वो होता है, लेकिन मेरा भी ये है कि उसको मुझे रिजेक्ट करना है। मैंने बाद में अपना बताया कि हाँ मुझे उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, मार्क्स जकरबर्ग, बिल गेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरली इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट होता है उसमें आपको ओपिनियन होता है ना, तो उसको आप पहले सपोर्ट करके फिर रिबटल पे आओ। दैट्स द कोहेरेंस, दैट इज आवर पॉइंट। he is asking that structure is looking really good. उसका लिख के मेरे को दिखा देना, हो सकता हो जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। देखो स्ट्रक्चर जो है रिबटल अगर पहले दे रहे हो उसके बाद पॉइंट इन फेवर, तो कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यू आ सकता है कि आपको जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे उसके बाद फिर रिबटल एकदम से आ रहा है, maybe it works। सर फिर अपोज्ड व्यू पॉइंट ही उसका पॉइंट हो गया ना, तो वो तो बात तो वही आ जाएगी। व्यू पॉइंट ये पोस्ट वाला है कि नहीं, रिबटल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं उसी की बात करता हूं, सक्सेस मस्ट बी कन्वेंशनल, अगर ये मेरा टॉपिक है, अब इसमें बताओ क्या पूछ रहे हो। सर पहले मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करा सक्सेस, व्हाट इज योर ओपिनियन, वो बताओ। सर मैं इंट्रोडक्शन में कोई ओपिनियन नहीं दूंगा इसमें, लेट्स से जो अगर अपना पैटर्न बताऊं, हाँ। पहले मैं एक इंट्रोड्यूस करूंगा सक्सेस की डेफिनेशन, तब कि ये कन्वेंशन वो फिर टाइम निकल जाएगा, वो डेफिनेशन मत देना इसके अंदर, डोंट ट्राई टू गेट इनटू डेफिनेशन, दैट्स अ वेरी ओल्ड वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज़ इफ यू गेट इनटू दैट वे, दैट 100 मे बी 50,000 पीपल राइट इट, दैट राइटर में जो उन्होंने लिखा हुआ तो इट हैज चेंज्ड द वे इट इज। क्योंकि अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो सक्सेस मस्ट बी कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल सक्सेस क्या है, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, 50 वर्ड्स वेस्ट हो जाएंगे। ओपिनियन तो खत्म करो, ओपन ही है ना ये आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं तो सीधा ओपिनियन पे आ जाओ। उस केस में वो ओपन में आप पिकअप कर सकते हो, व्हाट अबाउट व्हाट इज सक्सेस, वहां पे फिर डिफाइन कर सकते हो, सक्सेस इज दिस अकॉर्डिंग टू मी, फिर वहां इसमें मत करो, ओपिनियन दो, वन लिखो, फिर रिबटल दो, कंक्लूजन खत्म। ये और कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़, सर ह्यूमन के 6 पैराग्राफ्स में है जैसे आपने बोला, वो 300 वर्ड के हिसाब से 5 to 6 वो डिपेंड्स ऑन, बट दिस इज एन एवरेज साइज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक वो थॉट प्रोसेस फ्लो में नहीं आएगा, बिकॉज़ इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स अ वाटर टाइट और इट्स अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर की 50 होंगे, मे बी दैट कम्स इनटू 80, देन यू हैव टू रीएडजस्ट द वर्ड्स। हां प्रणव सर इंट्रोडक्शन में जरूरी है कि न्यूट्रल नहीं इंट्रोडक्शन में आप अपना एक वो भी दे सकते हो, थॉट कोड दे सकते हो, कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, देन यू कैन बिल्ड अप योर आइडिया, देन यू कैन गिव द लेट्स से
point in this case यहाँ पे बता सकते हो what you believe, then you can continue your belief against and then conclusion. मिनिमम वर्ड कितना होना चाहिए? मिनिमम वर्ड्स अगर 300 का है तो 250 तो होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको ब्रेथ मिल जाएगी उस चीज की, क्योंकि उससे कम करोगे तो फिर वो कंसीजन में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, देन यू विल बी से कि मैं 200 वर्ड बचा के क्या करूं, वो गड़बड़ हो जाती है. 300 वर्ड इज मोर देन इनफ. 250 to 300 इज एक्सेप्टेड. हां 310 मैक्सिमम बट नॉट 350, वो गड़बड़ हो जाएगी. सर जाएगा ही नहीं, वही प्रॉब्लम थी एक वर्ड में वहाँ पे 300 से आगे जाएगा ही नहीं, तो ऊपर से थोड़ा क्रंच करना पड़ जाता है अपना कंक्लूजन. हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप 300 वर्ड, तभी तो वो जो आपका पहला वाला प्रोसेस है क्रिटिकल एनालिसिस वो इंपॉर्टेंट है. यस आपको अगर वो नहीं किया तो आप एंड में जाके खत्म करोगे. समटाइम्स पीपल डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग एंड देन द आइडिया कम्स, अरे इसका ये आइडिया भी हो सकता, तो तुम थोड़ी आगे चेंज करो. प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट. और So if we feel that we also like we have I want to convey that I favor the topic. So I can write 2 points in favor and 1 point against also. हाँ तो लिखना है रिपोर्टल अगेंस्ट ही होगा ना, Okay. वो करना ही पड़ेगा. बैलेंस में ना, बायस थोड़ी दिखाओगे आप. मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, यू आर ए बायस पर्सन. बाय बाय बीजेपी. ये हुआ था, मे बी Munish sir has told you this happened with one of our guys. He became emotional. वो भाई साहब वो इंटरव्यू पैनल में वो थे, आपके सपोर्टर थे, ये एंटी आप तो हो गया कल्याण, वो इंटरव्यू जीत गया, ही लॉस्ट द बैटल, ही वन द वॉर. वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए. तो रिपोर्टल होगा. बैलेंस है ना, ये मैनेजमेंट ऐसे. वन द बैटल लॉस्ट द वॉर. हमें समझ नहीं आया उनका. एक्सेप्टेड. यू हैव टू स्पीक. हां उल्टा और बोल कुछ रहे थे. तो नेगेटिव नहीं जाना ना. नेगेटिव के सेंस में सक्सेस मस्ट बी कन्वेंशनल. फिर मैं ऐसा बता दूंगा कि क्यों उसके बता दूंगा कन्वेंशनल से क्या क्या नुकसान है, ऐसे तो ना बताऊं. मैं ये बताऊं कि उसके फायदे क्या है ना नॉन कन्वेंशनल के. हाँ डायरेक्टली इतना मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना उसके अंदर. डोंट बी वेरी एक्सट्रीम इन दैट केस. तो नेगेटिव इन द सेंस कि जैसे अगर आप बोलेगा कि सक्सेस क्या होगी, अनकन्वेंशनल होगी, तो उससे नुकसान क्या है. मैं कहूंगा आपने लिखा कन्वेंशनल, मैं कहता हूं इनकन्वेंशनल चाहिए. तो मैं वो ना बोलूं कि इनकन्वेंशनल की वजह, मैं ऐसे बोलूं कि कन्वेंशनल अगर ऐसे होगा तो क्या अगर नई इनोवेशन नहीं आएंगे, अगर हाँ नहीं कर होगा. सकते हो, नहीं कर सकते. मैं कर सकता हूं. हाँ क्योंकि आपने पॉइंट देखो. गुड. इफ आई से सक्सेस मस्ट बी कन्वेंशनल, why it should be, so I say yes it should be conventional. Why? Because if it is unconventional, then chances of failure are high. और क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं चाहिए सक्सेस कन्वेंशनल? सोचो. इनोवेशन इनोवेशन क्यों नहीं हो सकती? इसमें अनकन्वेंशनल. मतलब मैं बोला yes it should be conventional. क्यों अनकन्वेंशनल चीजें जो होती है उसके चांस ऑफ फेलियर हाई हो जाते हैं. और क्या होता है, देयर इज नो लेट्स से pre-tested body of experts to support you. आज किसान, पंजाब के किसान राइस के बाहर वो पैडी में या उसके अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे? Why is it not implanting or planting new plants or new crops? फेलियर का डर है ना उसको. कल को मैं यहाँ पे झूठ उगाऊंगा तो वहां पे उसका अगर डिजीज आ जाएगी तो मैं किससे बात करूंगा? दैट्स व्हाई पंजाब सक्सेस मस्ट बी कन्वेंशनल. बट उससे नुकसान क्या हो रहा है कि बॉर्डर जो टेबल है वो नीचे जा रहा है. तो आप उससे रिलेट कर सकते हो. जो फार्मर्स बिल है दैट कैन बी रिलेटेड टू दिस वन. सक्सेस टू अचीव सक्सेस इन फार्मर्स बिल व्हाट शुड वी डू. और आप इसके आगे जा सकते हो दैट अगर कन्वेंशनल होगी तो इनोवेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर हम एक टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे, अप्रोच फॉलो करेंगे, देन हु वुड बिकम एलोन मस्क, हु विल इंट्रोड्यूस टेस्ला, नहीं कर सकते उसको. ये हो जाएगा. तो नेगेटिव उस हिसाब से आप कर सकते हो. और ये है ना. और कोई क्वेश्चन? So let's see what the presentation adds to this. You don't need to note down anything in the presentation. जो भी है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. ये एक मिनट. हाँ Sir, in conclusion, do we mention new points or should we conclude the same points that we have? conclude, summarize that because of these things which you have discussed, एक conclusion point और इसका further approach कर सकते हो. क्या करेंगे? न्यू पॉइंट नहीं ऐड करेंगे. कंक्लूजन का मतलब है ग्रामर का एमालगमेशन. अब इन ये फिगर्स ऑफ इसी को याद नहीं और कुछ नहीं. Okay, so what is that? It is basically an opportunity to assess candidates' ability again to
Organize, develop, express ideas about the issue. In GMAT, in GRE, in CAT, in all these things, जहाँ पे ऐसे आता है, that's the only aspect that you control. इंटरव्यू भी आपकी जो होती है वो थोड़ी बहुत क्रिएटिव है, इंटरव्यू एंड ऐसे आता ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल. तुम्हारा टेस्ट स्टैंडर्डाइज है, उसमें कुछ नहीं कर सकते. तुम्हारा मे बी जो मार्क्स है वो तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. So that's the only point when you can add to whatever profiling you have. So organize, develop an express idea about the issue. Second, provide elements supporting reasons and example. देखो उनको भी एक बहुत ही ग्लोबल लेवल तो नहीं, नेशनल लेवल थिंकर चाहिए. उन्हें भी वहां पे बंदे चाहिए कि हाँ we have this person placed at Deloitte at 20 lakh package, we have this person based on or deployed to McKinsey, we have this person getting into working with Goldman Sachs. तो वहां पे वही बंदे आएंगे ना, अब उसको यही नहीं पता. लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट नो बियॉन्ड व्हाट इज पंजाब. पंजाब के बारे में पता ही नहीं कि क्या चीज हो रही, तो वो क्यों लेंगे इस बंदे को? उसको उनको पॉलिश ज्यादा करना पड़ेगा, ग्राउंड अप से पिकअप करना पड़ेगा. तो तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारी एग्जांपल्स कितनी स्ट्रांग है, क्या रीजन है, कहां पे चीजें. तो स्टार्ट रीडिंग वाइडली, कहां से क्या वो व्हाटएवर. देन राइटिंग स्किल्स आर देयर, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स. ग्रामर इज देयर, बट यस मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू प्रेजेंट दैट. So again, this we have discussed. So we will try to summarize it. It is like written GD. Content is the king. Simple as that. आज का जमाना नॉलेज इकोनॉमी कहा जाता है. नॉलेज इकोनॉमी का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ना यूट्यूब पे चैनल है लैड एंड विकी करके, उसके मंथली अर्निंग 7 करोड़ है. यूट्यूब चैनल, और कुछ नहीं करता है. इट हैज गॉट कंटेंट इन विच चिल्ड्रन जस्ट प्ले विद टॉयज. तो कैरी मिनाटी क्या, ये प्यूडीपाई क्या, कुछ नहीं है. प्यूडीपाई भी करता है. प्यूडीपाई कैसे बना इतना बड़ा बंदा? कंटेंट है उसका. कंटेंट को पिकअप करे तो कंटेंट इज द किंग. सो इट इज इंपॉर्टेंट इन बोथ. मैनर ऑफ स्पीकिंग आपके जीडी में होगा, राइटिंग में राइटिंग से इंपॉर्टेंट होता है. ग्रुप डायनामिक्स आप वहां पे नहीं डिस्प्ले कर सकते, टीम स्किल नहीं यहां पे डिस्प्ले कर सकते. यहां पे आपकी फाइट आपके साथ ही है. सो यू कैन नॉट बोरो एक्सटेंड इफ यू. हां, यहां पे दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम. If I am studying in GD, I do not know anything about the topic. I can become an analyst. अच्छा, सिद्धम ने ये पॉइंट कहा था, इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ? तो मैं वहां से चुरा सकता हूँ. इधर क्या करोगे? इधर तो खुद से बिल्डअप करने, तो कंटेंट पिकअप इट. मेंस पेपर, मे बी डिबेट्स व्हाट आर हैपनिंग, मे बी जो 105 एसेज हैं, 105 आपको टॉपिक मेरे उसके ऊपर पॉइंट्स लिखने लग जाओ, उसी से आपका 90% काम हो जाएगा. सीधी बात ये. देन in fact you do not have to worry about making entry of week cut. हाँ, obviously वो 3 मिनट जो ऐसे चेकअप तुम्हारे पास है, वो 3 मिनट तुम्हारे पास है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता. वो करो उसको. लेट्स सी व्हाट इट इज. हां, ये क्या था? हां, हाउ इज दैट इवैल्यूएटेड कंटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो जितने मर्जी तुम्हारी वोकैबुलरी हाई हो, वेदर यू बिलोंग टू सेंट्रल लॉ, वेदर यू बिलोंग टू डूम पब्लिक स्कूल, इफ यू हैव यू नो शिफ्ट थ्रू डिफीटिंग वोकैबुलरी, यू डू नॉट कंटेंट क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते. देन हैव यू मेड वैलिड आर्गुमेंट्स. तो अगर मैं बात कर रहा हूं अनकन्वेंशनल की या कन्वेंशनल की, तो उसमें मैंने क्या आर्गुमेंट डाले? मैं बोलूंगा दैट प्रोफेसर्स विल नॉट लाइक इट, टीचिंग विल बी डिफिकल्ट. टीचिंग विल बी डिफिकल्ट. कन्वेंशनल थिंकिंग क्या लिंक है उससे? तो आपके आर्गुमेंट वैलिड होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए. हैव यू प्रोवाइडेड कन्विंसिंग रीजनिंग फॉर योर आर्गुमेंट्स? अगेन लेट्स सी व्हाट इट सेज अगेन. हैव यू प्रेजेंटेड वैलिड एग्जांपल? फर्स्ट में कोई क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड इट, बट स्टिल एनीथिंग क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अगेन यू हैव टू बी वेरी 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 अवेयर ऑफ दिस. TED.com में कौन कौन जाता है? TED.com क्या है? TED.com कितनों को पता है कि TED.com क्या चीज है? पता है, पता नहीं है. पता है. चलो, कितनों को पता है कि TED.com क्या चीज है? ओके, मैं ओके फाइन. अभी तो पता नहीं. So if you want to become good at all these things, one small practice you should do is to go to TED.com and watch their talks. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. पॉलिटिकल मीनिंग्स है. फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट, डू यू नो हाउ एडवर्टाइजिंग कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग डायनामिक्स? कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजिंग वोटिंग डायनामिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है? 2016 हुआ है सर यूएस. क्या रेलेवेंट एग्जांपल है ये? अभिनंदन जी, आप एक मित्र हैं. 2016 के एग्जांपल है तो उन्होंने क्या लिखी बताओ? उधर मत देखो. हाँ, हालांकि जी एडवर्टाइजिंग से वोटिंग डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. बी के बाद बनी. सर जो ट्रम्प की पूरा वो ट्रैवल
कैंपेन चला था सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से it was like That is one good aspect of it, that Trump advertised himself very much on social media and he got more votes. एक और aspect है इसका, the dark aspect of it. What is that? Stealing data. कैम्ब्रिज एनालिटिका। हाँ, उससे क्या किया था? Good. कैम्पेन एनालिटिका ने क्या किया था बताइए? Data steal. सेंसिटिव हाँ, प्राइवेट इंफॉर्मेशन उन्होंने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को दे दी थी। एस्पेक्ट्स में यूज की थी जो इलीगल था उस पर। और क्या किया था उसने कैंपेन एनालिटिका ने? So basically they targeted people with positive thoughts and give them those posts or news which particularly change their thoughts into their perspectives. मैकडोनल्ड गए हो कभी? मैकडोनल्ड में वो जो फ्रेंच फ्राइज होती है वो काउंटर के पास के वो बार रहे होते, वो उसको फ्राई उसमें जो फ्रेग्रेंस अरोमा होता है उसका, वो खतरनाक चीज होती है। ऑरेंज कलर का क्यों होता है मेन्यू वहां पे फूड में? विदाउट ऑरेंज कलर ट्राइज टू साइकोलॉजिकली इवोक द हंगर इन यू। जो कैंपेन एनालिटिका ने किया और जो राहुल ने बोला, राहुल राइट, उन्होंने जो बोला वही उन्होंने किया था। फॉर एग्जांपल इन पंजाब, इन लुधियाना, आई बिलीव दैट SAT हैज गॉट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू वोट फॉर इट, नॉट इन होशियारपुर और नॉट इन माछीवाड़ा। तो वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे विल राइट two questions, two type of question. One, A/B testing जिसको कहते हैं. One question is, are you voting today? Yes or no? अब SAT को जिताना है, तो SAT वाले लुधियाना में क्या करेंगे? Your friend सिद्धम voted. Are you voting today? अब पर से फितरत होती है, अच्छा सिद्धम ने किया, सिद्धम ने नहीं गाड़ी ली है, मैं भी लूंगा। सिद्धम ने वोट किया, मैं भी करूंगा। That is what he is trying to say. That is what this is all about. Example. That's how advertising can influence voting dynamics like this one. और ये मैंने खुद नहीं सीखा, TED.com ने मुझे सिखाया। मुझे कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, पर मुझे पता है कि जो आज का मैकेनिकल इंजीनियर है उसमें बोस्टन डायनेमिक्स का नाम बहुत ऊपर है। क्या तुमने सुना बोस्टन डायनेमिक्स क्या है? क्या है भाई वो? रोबोट मैन्युफैक्चरर बस छोटा सा, हाँ, डॉग। ऑन क्रिसमस लास्ट ईयर, दैट इज 2020, उन्होंने 6 रोबोट्स को डांस करवाया था ऑन क्रिसमस सॉन्ग। रोबोट सुन रहे थे, सीख रहे थे, उसके बाद क्या था। So your relevant example should be there. So TED.com पे जाओ, YouTube पे जाओ, जहां पे भी आपके पास कंटेंट मिलता है, try to grab that content. Content नहीं है, कुछ नहीं आपके पास। Then structure of your letter, we have discussed it, but we will try to again see what it is. Does your letter follow logical structure? So logical structure होना चाहिए। What that logical structure should be, that depends upon the topic. Open है, wishy-washy है या yes or no है। Are points arranged in the order of importance? Yes. जो मेजर पॉइंट है, जो प्रायोरिटी वाला पॉइंट है वो ऊपर रखो, जो लो प्रायोरिटी वाला पॉइंट है उसको नीचे रखो। Why should we select you? I was, let's say, a good debater, but did you mention कि तुमने इंटर्नशिप डेवलप में की थी? अब कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए वो तुम्हें आना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट 2-3 मिनट के अंदर ही आपका काम वहां पे ऐसे में खत्म हो जाता है। 340 पॉइंट ना उसमें, तो अगर पहले भी आपने अरेंजमेंट पॉइंट नहीं डाले उसका इंटरेस्ट लूज हो जाए। सो प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। ये which we have understood, कोहेरेंस होना चाहिए। जितना काम आप अपने ऐसे चक्कर का सही करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आप उसका काम डिफरेंट करोगे तो वो मे बी ही डिडक्ट्स योर मार्क्स। सो राइट ऑन दोस कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो जो आपके पॉइंट्स होते हैं जो आपने पैराजमल में करे होंगे, होते थे मैंडेटरी पे, फर्स्ट है, सेकंड है, देयर है, दिस है, वो सब। Language, again we discussed, it is not necessary that we follow very high vocabulary, but it is necessary grammar आपके ठीक है। It is necessary that you have logical points. हाँ, I will share one small article. उसमें था एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आइडिया अवॉइड करो। Do not try to cram 3 ideas in a single sentence. वो बंदे कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपके पास 2 से ज्यादा आइडियाज है, split that sentence into 2 parts. Second, if you want to bring one important, let's say definition, important term in a sentence, उसको थोड़ा लास्ट करो, पहले उसका बिल्डअप करो। Right, so that is what it says. So spelling mistake, इसी को आपने लास्ट के 2 मिनट्स के अंदर जाके प्रूफ रीड करना है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, ये है। So specific issues, economic growth without environmental damage, myth or reality. ये कौन सा टॉपिक है? wishy-washy है, open है या yes or no है? Wishy-washy. Should India participate in China's O-Born initiative? Yes or no? Yes it should, no it should not. How could we have handled COVID better? ये ओपन है, उसमें आप कुछ कर सकते हो। अब ओपन में it is not that you can write anything. एक पॉइंट फोकस करो, then you build upon that. अब फॉर एग्जाम्पल एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आता है पिंक, मतलब क्या? किसी भी चीज में लेके
लेके आ सकते हैं हमारे पिंक तो चीक्स की होती है, हेल्थ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। वो कलर व्हाइट होता है, शायद येलो होता है। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का मतलब फेमिनिज्म पावरमेंट आ सकते हैं, है ना। अब ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इट कैन लीड टू chaos. तो व्हेन यू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, थिंक व्हाट यू वांट टू राइट अपॉन। वुमेन इश्यूज अगर आप पिकअप करें तो वुमेन इश्यू आजकल क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? आर यू वांट टू टॉक अबाउट साबरीमाला इश्यू और नॉट? You want to talk about female feticide which is growing good? You want to talk about बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और what? तो वो आपको वहां पे पिकअप करना पड़ेगा। How could we have handled COVID better? In what sense? With respect to the economic aspect of it, with respect to the medical aspect of it, or what? किस लेवल पे आप जा रहे हो? अब जनरल स्टूडेंट वेराइटीज पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये आपको ओपन टॉपिक है ना। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ऑनेस्टी में ऑलवेज नॉट बी द बेस्ट, मे नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट पॉलिसी। इसमें क्या लिख सकते हैं? ऑनेस्टी में नॉट बी द बेस्ट पॉलिसी। ये एथिकल के अंदर आ जाएगा। शुड वी ऑलवेज बी ट्रूथफुल टू आवर कस्टमर्स? यस, तो दैट मींस ऑनेस्टी मस्ट ऑलवेज बी द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो अगेन अभी आज का 26 है ना, यू हैव गॉट अ हॉलिडे। इसमें ये टॉपिक नोट करिए। और ये वाला ऑनेस्टी वाला, इस पे सब ऐसे लिखेंगे एंड यू सेंड दैट ऐसे विदाउट फेल। ना तो फिर रैड का जो आज हमने किया वो पूरा 1 घंटे का काम खत्म हो जाएगा, वो थ्योरेटिकल रह जाएगा। फिर बोलोगे नहीं लिखना आया, क्यों नहीं लिखना आया? सर फिर थर्ड पर्सन कितना आता है? क्या पूरा कौन सा? कोई भी आगे लिख रहे हैं नहीं, ये आप इसको थर्ड पर्सन में कैसे लिख सकते हो? हाउ कुड वी हैव हैंडल्ड इट? वी कुड हैव डन दिस। थर्ड पर्सन में क्या लिखोगे? इंडिया के बारे में वो तो खुद ही आपसे नहीं पूछ रहा है ना। ऑनेस्टी में नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड पर्सन मतलब इन व्हाट सेंस? हाँ, इसको तो करोगे ना, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो ऑनेस्टी में नॉट वन पर्सन हु इज लुकिंग एट दिस वन, वो आप कर सकते हो। अगर पर्सनल एग्जांपल दे रहे हो, पर्सनल एग्जांपल अगर आप एग्जांपल भी दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग एन एग्जांपल, मेक श्योर दैट वो एक्सपैंड हो गई। पहले पर्सनल एग्जांपल है, फिर स्टेट लेवल एग्जांपल, फिर नेशनल एग्जांपल है, एक्सप्रेशन दिखाओ। सो यू मे कंप्लीटली और पार्शियली डिसएग्री और एग्री विद द स्टेटमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। You any stand is acceptable as long as you back it with valid reason or example. सिर्फ bias approach नहीं दिखानी है। You want to say that Modi साहब is bad, Modi साहब is bad, क्यों bad है? बस I don't like his, I don't know what, but he is bad. वो लॉजिकल नहीं माना जाएगा। वैलिड कौन देना चाहिए? उसको रेटिंग दो। यार आउट ऑफ 10 I believe he is good by around maybe 5. Why 5? Because of these things. अगर ये ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये देते हैं ना रेटिंग जोमेटो पे, 5 स्टार में से 4 स्टार। क्यों? क्योंकि फूड का टेक्सचर खराब था, फूड की पैकेजिंग खराब थी। वही चीज यहाँ पे करनी है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी मैनेजर। कल को आपको अपने सीनियर को बोलना है कि ये प्रोजेक्ट हम ले तो उसमें रेटिंग ये है, तो ये रेटिंग लेने का रीजन क्या है, इस प्रोजेक्ट में ये कमियां हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू विद वैलिड रीजन एंड एग्जांपल्स। हाउ टू अप्रोच EOSAP? सो एनालाइज, ऑर्गेनाइज, सपोर्ट, बजट, वी हैव डिस्कस्ड इट। एनालाइज, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट इज द पॉइंट बीइंग मेड इन द टॉपिक, ओरिजिन क्यों है उसका, क्या है वो टॉपिक के अंदर, क्या उसका बेस है। हाँ, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, व्हाट स्टैंड इज बीइंग टेकन, इसका मतलब क्या बनता है? सोचो, बताओ। इट्स गुड 2 minutes मैक्सिमम, थिंक ऑन दिस। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, दैट मींस वी कैन नॉट मेक Barack Obama, he has to be born Barack Obama. So that means you all cannot be made leaders, है ना, यही तो बोला है ना। MBA को तुमसे पूछा, लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न, सो दैट मींस MBA स्कूल का वजूद ही खत्म है बाबा, ये हुआ ना इसके अंदर। तो मे बी लेट्स सी सिचुएशन, द स्टेटमेंट क्लेम्स लीडरशिप स्किल्स आर innate like Shubham said and cannot be taught. It means there is no use to teach leadership skills, that means I should not exist. तो ये अगर आपने ये इस टॉपिक में you have to be very logical, you have to see what and how you bring it to it. So you have to write your opinion about what. अब ये अगेन आपका डिसएग्री और अग्री वाला है, ये ओपन नहीं है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। यस आई एग्री, लीडर्स आर, सम लीडर्स आर बोर्न बट मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स आर मेड, दे आर नर्चर्ड इन द एनवायरनमेंट व्हिच आर देयर, मे बी फाइनेंशियल लीडर, मे बी ग्लोबल लीडर, मे बी व्हाटएवर। Do not decide your stand beforehand, but look for points in favor of both sides and then decide what to side you agree. Accordingly, you channel your writer. So like someone said कि पहले मैं लिखूं, it's better that you started with that
बट अगर आप बिल्डअप करें तो आप ये भी कह सकते हो आई बिलीव दिस एंड देन सो आई फाइनली एग्री विद दिस। तो ये तभी आएगा जब आप अपने एसेस को राइट करना स्टार्ट करो। तो लिखो, सेंड करो, आई मेक अ गूगल ड्राइव फॉर दैट, उसमें अपलोड कर देना ताकि हम पिकअप कर सकें। डू नॉट से, हाँ ये देखो, डू नॉट से राइटिंग एट वंस, सीधा जापो मत कर लेना, वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। टेक टाइम लाइक वी डिड द टी पॉइंट, तो टी बनाओ और टेबल में लिखो अपने पॉइंट्स, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, नाउ दिस इज हाउ वी राइट द एसे। व्हाट एग्जांपल्स कैन वी फाइंड इन द फेवर ऑफ बोथ साइड्स? राइट वन एग्जांपल लो, लाइव एग्जांपल लो। Can you find examples of leaders who rose to great heights emerging out of nowhere? Barack Obama would be a good example. Maybe Narendra Modi is a good example. Maybe Arvind Kejriwal, maybe whatever. तो वहां से वाले पॉइंट पिक अप करो कि वो प्री बिल्ट नहीं थे, वो बने हैं, या वो प्री बिल्ट थे, वो बने हैं, वो बनाने नहीं पड़ा। Can you find examples of leader who somehow landed in the position initially fought but learned everything the hard way? Elon Musk can be, maybe not. दोनों होंगे। ये अब ये इसका फर्दर आर्गुमेंट क्वेश्चन है, लीडर्स इकोनॉमी में तो कौन बनाता है उनको लीडर? सो हु मेक्स अ लीडर? इज इट सम ह्यूमन बीइंग? इज इट अ बी स्कूल? इज इट अ मैनेजरियल अकेडमी? और कैन द सिचुएशन बी चैलेंजिंग फॉर द टीचर और नॉट? ये है ना इसका प्रमाण। तो ये आप पॉइंट वहां पे डालो, सो दैट मे बी अ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद लीडरशिप स्किल्स but then he may not know it. They have to be nurtured. तो टीचर आके नर्चर करेगा उसको, एक बी स्कूल आके नर्चर करेगा। So really, this attitude which cannot be taught or which can be taught. So what are the points? इसमें कोई डाउट? सपोर्ट नो प्रेजेंट, इसको देखिए कोई स्ट्रक्चर है इसका। हाँ ये रहा। So present you argument in form of paragraphs. One argument per paragraph should be there. Don't overburden that paragraph with multiple points. Write argument in order of importance. Again, introduction में you may paraphrase the argument of that in your words in one sentence. Generally, जो yes or no है उसको आप कर सकते हो, open को मत करना। तो CAT का मैं लिंक शेयर करूंगा, उसमें सर ने एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, उसको लिखो, देखो क्या है, try to replicate that. Second sentence can be summary of your stand. You agree, disagree or partially agree. तो introduction का ये structure है। तो अभी जो आपको ऐसे मिला है उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, पहले उसको लाइक हैंड होल्डिंग के, देन यू कैन बिकम मोर एक्सप्लोरेटिव, मोर एडवेंचरस, बट दैट्स स्टिल कन्वेंशन। सेकंड थर्ड आर्गुमेंट, योर आर्गुमेंट विद रीजन एग्जांपल। 250 वर्ड का है तो सेकंड और थर्ड आएगा, 5 into 5 would be 250. Fourth paragraph, counterpoint, rebuttal. You may take one side but agree that other side also exists. लेकिन उसमें भी एक अदर साइड एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी मेरा पॉइंट जो है दैट इज मोर पावरफुल। कंक्लूजन, लाइक समबडी आस्क्ड कि हाँ समराइज करना है जो भी आपने ऊपर डिस्कशन। इसमें कोई डाउट है या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? स्टिल सर ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आपने ऑनेस्टी वाला टॉपिक दिया है, तो उसमें मैंने बोला कि ऑनेस्टी हर एक उसमें नहीं है, तो मैं लाइक एक पैराग्राफ लिखा इंट्रोडक्शन, मतलब लाइक पॉइंट्स बना के बुलेट 1 2 3 4 और उसके बाद नहीं पैराग्राफ लिखो, बुलेट पॉइंट का उसका क्या मतलब होगा? लाइक कि हेल्थ केयर में देखे तो लाइक मेंटल हेल्थ में देखे तो उसमें नहीं होना चाहिए, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स मत करो। गुड क्वेश्चन। डू नॉट ट्राई टू ओवरबर्डन योरसेल्फ विद लॉट ऑफ पॉइंट्स। सिर्फ पॉइंट्स चेक करने का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट्स चेक करिए, उसको सपोर्ट करिए, हाउ इट लिंक्स टू योर एसे, एंड देन शिफ्ट फ्रॉम टू अदर पॉइंट्स। सिर्फ लाइंस मत लिखो उसमें। बुलेट पॉइंट वुड बी कि ये किसी बस इसको बस थ्योरेटिकली आता है, इसको आगे ले नहीं जा सकता। वो दोनों स्टेप। और कोई क्वेश्चन? So we are already getting this. तो वो 2 essays हैं, वो आपको लिख के लेके आने हैं। इसके अलावा कुछ पूछ सकते हो, पूछिए। डन? तो परसों तक मैक्सिमम मेरे पास वैसे आ जाने चाहिए। जो ये